Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Chaudhry Mohammad Tahir. I am working as a consultant dermatologist in Wabda Hospital, Lahore, and as head of department. I graduated from Allama Iqbal Medical College in 1987 and did my post-graduation diplomat in dermatology from Wales, UK in 1993, and since then I have been working as head of department at Wabda Hospital, Lahore. My fields of interest are: number one is the clinical dermatology. Clinical dermatology, which is basically the academic dermatology. I have been teaching in Central Park Medical College as assistant professor, and basic diseases of the skin like acne treatment, hair fall treatment, treatment for eczema, treatment of vitiligo, which is known as bursts, and the treatment of alopecia areata, which is bal jad. The second one is the procedures which we perform. We perform regularly the PRP for the hair growth and PRP for the rejuvenation of the face, and we also do laser hair removal, and we also do HIFU treatment for the skin tightening and the double chin, and in addition we also have a laser for tattoo removal, and we also do phototherapy, which is UVB and UVA phototherapy for vitiligo and for psoriasis, and also for the hair loss, which is a very important factor. Is basically derived from a word hubbe shabab in Arabic, which means prime of life. And in prime of life, acne occurs in your teenage, and now there is a strong genetic predisposition for acne, and the genes have been identified, and acne occurs only in those families who are predisposed to those genetics. In addition, other fact, if you have a positive genetics, then your hormonal levels in the female cycle, and then your diet, and the number three most important thing nowadays is the stress, which matters. Nowadays people are in a habit of taking a lot of junk food and fizzy drinks and all that, and in addition of stress, which causes acne. Acne is now 100% curable. Various treatments of acne, there are various treatments for mild acne which contain mild antibiotics and topical treatment. Then there are some specific treatment which are catered according to the need of the patient. There is a one specific medicine known as isotretinoin, which we use for severe acne. It prevents scarring, and it has got 99.99% cure rate. The foremost and the important thing is that people tend to use these mixed creams and over-the-counter medicines like Betanovate. All these mixed creams which are being used, they cause acne, they temporarily heal the acne, affect the temporarily उसको ठीक करती है acne को, और उसके बाद जो है फिर वो ख़राब हो जाता है और उससे चेहरे पे बाल भी निकल आते हैं। जो ओवर द काउंटर प्रेपरेशन मिलती हैं, अगर तो वो स्टैंडर्डाइज कंपनीज़ की हैं और अच्छी वाली हैं, जैसे यहाँ जाली शीशियाँ बोतलें भरी जाती हैं, तो वो डेट मस्ट नॉट बी यूज, लेकिन हाइलोरॉनिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड माइल्ड पील्स। लेकिन ओवर द काउंटर प्रिपरेशन में प्रॉब्लम यह है कि देयर द लेवल एंड कंसनट्रेशन ऑफ द मेडिसिन इज़ अप टू अ स्पेसिफिक लिमिट। उसमें एक ख़ास डोज से ज़्यादा आप मेडिसिन ऐड नहीं कर सकते। सो इसलिए हम डिस्करेज करते हैं कि आप खुद से कोई चीज़ ना यूज़ करें, बिकॉज आपका चेहरा ही आपकी पहचान है, उसको आपने देखना है। थोड़े से पैसे बचाने की खातिर बच्चियों के चेहरे लोग ख़राब कर लेते हैं, डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते, ये कहते हैं कि जवानी के दाने हैं, खुद ठीक हो जाएंगे, सन भी निकले सन। दे वुड से दिस माई यूजली कम द मदर यूजली कम एंड दे से सन भी निकले सन, दाने साढ़े तो ठीक हो गए सन, इन्हें पता नहीं क्यों नहीं ठीक हो रहे। नाउ डेज द हार्मोनल इशूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ देर इज़ समथिंग रॉन्ग विद योर साइकिल एंड द पीरियड्स, then it must be taken care of। उसका बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए, साइकिल आपका रेगुलर हो, और उसके लिए मेडिसिन होती हैं। कुछ एक्ने ट्रीटमेंट हैं जो जिसमें साइकिल को रेगुलेट करने की मेडिसिन भी दी जाती हैं। बाल जो है, हेयर जो है, दे आर मेड अप ऑफ केराटिन। केराटिन इज़ अ प्रोटीन। जब आप द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर नाउ अ डेज इज़ डाइटिंग। डाइट मैनेजमेंट करनी चाहिए। किसी ने वज़न कम करना है, अगर वो डाइटिंग करता है, ये करती है, तो उससे बालों को अप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन मिलनी बंद हो जाती है, बदन में लोड शेडिंग हो जाती है। जैसे
बिजली की लोड शेडिंग होती है। इसी तरह the energy and your protein go to vital structure, heart, lung, liver, brain, muscle, and then they don't go to your hair. On an average 100 to 150 hair fall per day is considered to be normal worldwide, provided that they are being replaced. If they are not replaced, then there are हमारी जो खुराक है उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें, मैं फिर आऊँगा जंक फूड की तरफ, जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो हम नहीं ले रहे। हम बहुत ज़्यादा चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हार्मोन्स को हम नहीं टेकन केयर ऑफ़ कर रहे, बहुत ज़्यादा जेली शैम्पूज़ और कंडीशनर वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 नंबर तेल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं दे एड अप और उसकी वजह से हेयर थिनिंग हो जाती है। अब हेयर थिनिंग के 2-3 टाइप्स के ट्रीटमेंट हैं। एक तो उसमें हम कुछ मल्टीविटामिन स्पेसिफिक हैं वो देते हैं, नंबर 1। नंबर 2 उसके साथ कुछ UVB थेरेपी है, कुछ उसके लिए PRP ट्रीटमेंट एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है जिसमें आपका थोड़ा सा ब्लड लेके और उसमें को मशीन में डाल के स्पेसिफिक फैक्टर्स निकालते हैं और उन स्पेसिफिक फैक्टर्स को मशीन के ज़रिए ही आपके सर में इंजेक्ट करते हैं, जिसका बड़ा अच्छा रिस्पांस होता है। और थोड़ा सा डाइट मैनेजमेंट प्लान पेशेंट को देते हैं जिसकी वजह से बाल बेहतर हो जाते हैं। इसके अलावा बाल गिरने की जो फर्दर बीमारियाँ हैं, बाल झाड़ वगैरह है, वो ज़्यादातर स्ट्रेस के साथ एसोसिएटेड हैं। और फिर छोटे बच्चों में फंगस जो है सर का आजकल बहुत कॉमन है, स्कूल्स में फंगस की वजह से पैची हेयर लॉस हो जाता है। फिर कुछ स्पेसिफिक बीमारियां जिनमें स्कारिंग वो नुकसान है बालों का जिसमें बाल स्किन पे दोबारा नहीं उग सकते, उनमें फिर ट्रांसप्लांट के इशू होते हैं, कोई टैटूइंग वगैरह हम उसमें करते हैं। इस मौसम की मुनासबत से पहली बात तो ये है कि हमने पानी का इस्तेमाल जो है वो कम नहीं करना। 8 से 10 गिलास पानी जो है वो आपकी स्किन के लिए पीने के लिए बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, आपको कोई मॉइस्चराइजिंग सोप पे कन्वर्ट होना पड़ेगा। बेशुमार मेडिकेटेड सोप्स भी हैं, कुछ कमर्शियल भी अवेलेबल हैं, मॉइस्चराइजिंग इस फोरम पे नाम लेना मुनासिब नहीं है उनका, लेकिन वो सोप पे आप कन्वर्ट करें। नंबर 3, ये जो इश्तिहारी साबन है और जो ज़्यादा केमिकल वाले साबन हैं जिनकी स्कूलों में बच्चों की वीडियोज़ भी दिखाई जाती हैं जाके, उन साबुनों को अवॉइड करना है। बॉडी पे एक रेगुलर मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है और मेन फल और सब्ज़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो उसके आपकी स्किन बहुत अच्छी और हेल्दी हो जाएगी। एंड आई वुड लाइक टू से दैट कोई भी छोटी प्रॉब्लम है वो छोटे मसले से ही बड़ा मसला बनता है। तो कोई भी किसी किस्म का छोटा मसला जो आपके छोटे मोटे घरेलू टोटके से, वैसे तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए, ठीक नहीं हो रहा तो आपको थोड़े पैसे बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और उसके लिए फ़ौरन स्पेशलिस्ट डॉक्टर को, जो उस फील्ड का डॉक्टर हो। जनरल प्रैक्टिशनर आमतौर पे उस फील्ड में नहीं होते, वो हर तरफ पाँव फंसाते हैं अपना, लेकिन मरीज़ को ख़राब कर देते हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टर को फ़ौरन दिखाएं और होम रेमेडीज़ के इस्तेमाल से परहेज़ करें। आपको अगर स्किन का कोई मसला है, स्किन का किसी किस्म का ट्रीटमेंट चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू ओला डॉक। थैंक यू।